So welcome Rajat, Bodh and Seema. And Miss Seema Jalan, thank you for your time to come and talk to us. I so Seema is I just came to know about her, and she is a yoga teacher, and she is a nutritionist, and she is helping people with their lifestyle. And today she has agreed to talk to us about all these things, and how it can help us, how maybe how we can live a better or a healthy lifestyle, how we can create it, and anything that Seema can share with us with her experiences. So over to you, Seema, and I'm looking forward to your talk. Thank you, Seema, for Thank you, Anuradha ji, for giving me the opportunity. So I'll just share my screen and I'll start with the. So I would like to introduce myself as a nutrition and fitness coach. I've done my diploma and now I'm on to my advanced diploma in nutrition and fitness. So I help people in losing weight and improving their lifestyle. And also, like if they have any prevailing conditions, I also help them in counseling. So let's begin with like what all they can do. So we all have at some point done some kind of diet in our life. So can any of you tell me like what is diet? So diet for me means a balanced meal. Okay. According to our lifestyle, age, work. So that would be diet. But diet has become like, as if like eating less. Yeah, that's what I mean, people now mean that it is some kind of restrictive activity, to eat less food and remove this particular item, food group or some food item from our diet. So they call it as diet. I mean, Bodh or Rajat, would you want to contribute to what is diet, your understanding of diet? I would say, yeah, absolutely. What you have just covered, that I consider diet as, perhaps if you go to the exact meaning of diet, it might be a meal a day, like what we eat or what our body requires. But somehow it has gone to a connotation where we have, we all want to restrict ourselves in one way or the other. Thank you. Correct. So let's move on. Wikipedia also describes the food as the sum total of the food that we eat is diet. So what we eat in a particular meal or a day becomes our diet. And what is nutrition? Nutrition is the energy, the nourishment that we get out of that food. Now, if we take example of a car, suppose our body is like a car, the food we eat, that is the fuel to our body, and the physical activities, the day-to-day activities that we do is the maintenance. So all of this, even food and physical activities, both are important to keep our body healthy. But somehow people are missing out on the physical activities nowadays, which is the main reason for people falling sick and all sorts of diseases. So now what we can do, how we can start our fitness journey. So there are 6 points that I have mentioned. Here is add protein in each meal. Now Indian food as we take it, I think we all are vegetarian here. I'm vegetarian, yeah. Okay. So, especially vegetarian meal, if we take example for, it is very low in protein. And what protein does is it helps us keep satisfied. Protein is the building block of each and every cell of our body. Each and every cell of the skin, hair, or any cell inside our body is made up of protein. So it is very important that we include enough protein in our meals. Now the RDA, the minimum requirement of our protein intake for a day is 0.8 grams of our body weight. But we Indians don't even consume 0.5 grams of protein
per day. For example, if you take for breakfast, a lot of people eat poha or upma, suppose, for example. Now, if you take you ate 100 grams of poha for your breakfast. Now, that is rice. Rice 100 gram will have around 10 gram of protein maximum. Now, if you are suppose somebody with 60 kg weight, and if you are eating 3 times rice, 100 grams, 100 grams, 100 grams. So you got how much? 30 grams of protein only, which is like 0.5 grams of protein. But throughout the day, you should be having at least 0.8 grams of protein throughout the day. So this, what happens is, we do not get enough food, and that keeps us hungry, and we keep munching throughout the day. So we should include protein in each meal. I will be discussing what kind of protein sources are there, which are, we can include in our meals. Now include fiber and veggies, fiber from veggies and fruit. Now fruits and vegetables, they are high in fiber, and also they are packed with minerals and vitamins. So we should eat at least 4 to 5 types of vegetables and fruit every day. अभी क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, बिस्किट खा लेते हैं या फिर कुछ स्नैक और खा लेते हैं, एंड दे मतलब जल्दी में क्या होता है कि दे डोंट वांट टू पील देयर फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड ईट इट. इनफैक्ट कि सामने जो मिला चलो खा लिया. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कट देम, peel them and keep in a container, and if we have it in front of us, we will definitely have it. अगर सामने रहेगा तो हम उसे खाएंगे. Now keep your water intake 3 to 5 liter at least. So water is one thing I have seen, I've worked with my clients and see that people don't drink enough water. अभी क्या होता है कि जब हम लोग पानी नहीं पीते हैं तो हमारी बॉडी जो है, इट स्टार्ट्स टू रिजर्व वाटर, इट गोज इनटू स्टारवेशन मोड. एंड जब वो हम लोग वाटर जब बॉडी होल्ड करना शुरू करता है तो हमारा वेट भी बढ़ना शुरू करता है. और जब आप ये पानी अगर आप ज्यादा पीना शुरू करते हैं, देन द बॉडी स्टार्ट्स टू डिप्राइव इटसेल्फ ऑफ द वाटर विच इट हैज रिटेन्ड. तो धीरे धीरे करके आपका वेट भी कम होता जाएगा अगर आप अपना वाटर इंटेक बराबर रखेंगे तो. एंड अनदर थिंग इज, start doing workout for 30 to 40 minutes at least. Even मैंने देखा है कि 15-20 minutes of exercise अगर हम लोग डेली करते हैं तो उससे भी हमारा हेल्थ अच्छा रहता है. एंड नेक्स्ट इज स्लीप फॉर 7 to 9 hours. अभी लोग ज्यादातर मैं देखती हूँ कि रात को भी वो लोग अपना फोन लेके देखते होते हैं, एंड दे sleep for 5 to 6 hours. अभी सब स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं. नाउ दैट इज अगेन अफेक्टिंग देयर हेल्थ. दिस नीड्स टू बी गेट रिड ऑफ. पहले क्या था, लोग सोते थे आराम से 7 से 8 घंटा, तो I mean their body used to get proper rest, and they were healthy. बट अभी जहाँ ये स्लीप कम हुआ तो इससे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है बॉडी का, एंड वी फील मोर हंग्री बिकॉज ऑफ दैट. Because there's a hormone called cortisol which increases in the body and which results in excess hunger, and that's why we keep munching more and more. And जो हमारा physical activity है, आजकल लोग बैठ के भी ज्यादा रहते हैं, so we need to move more to be more active. I hope I'm making sense. Absolutely. Okay. That reminds me that in today's world, sitting has become like a smoking now, like a smoking. So sitting is the new smoking kind of thing. Yeah, no, we need to remind ourselves that we are not a tree. We need to move. Right. And do you have any suggestion as to what movement? I have heard this, sitting is the new smoking earlier also. What would your suggestion be as, or maybe you can cover later, as to how much movement, like you said, 20 minutes of workout. So movement as in, yeah. Though now workout is different from moving. Moving is throughout the day. Activity is different from exercising your body. When you exercise your body, you energize your muscles, you activate them.
कि आप अपना सारा काम दिन भर कर सको ठीक से। एंड मूविंग थ्रू आउट द डे इज टू कीप योर बॉडी एक्टिव। हम लोग को चलना बहुत जरूरी होता है। लाइक आपने देखा होगा जो जिन लोगों के पास डॉग्स होते हैं, डॉग ओनर्स, दे टेक द डॉग्स आउट फॉर वॉक एवरी डे। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर वो डॉग को वॉक के लिए नहीं लेके जाएंगे तो डॉग वो घर में रह के बीमार हो जाएगा। सेम इज विथ आवर बॉडी एज वेल। हम लोग को भी एक्टिविटी चाहिए। हम लोग नहीं उतना एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी धीरे धीरे बीमार होती जाती है। तो इसके लिए देर आर फ्यू टिप्स टू इंक्रीज योर वॉकिंग स्टेप्स। एक तो जब हम लोग बात करते हैं फोन पे, दैट टाइम यू कैन वॉक द टॉक, मतलब फोन लेके चलते चलते बात कर सकते हैं। दूसरा, अभी लोग रील्स बहुत देखते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, दैट टाइम ऑल्सो यू कैन वॉक। तीसरा, मतलब अगर आप 1 या 2 फ्लोर ऊपर रहते हैं बिल्डिंग में, सो यू कैन टेक द स्टेयर्स, दैट इज वन थिंग। एंड अनदर थिंग मैं लोगों को बोलती हूँ कि जब भी आप अपना मील्स ले रहे हो, कोई भी एक मील खाने के बाद में 5 to 10 मिनट्स वॉक। उससे क्या होगा कि आपका जो फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, प्लस आपका जो इंसुलिन है वो उसका लेवल ज्यादा स्पाइक नहीं होता है जब आप एक्टिव रहते हो, मूव करते हो तो। So these are few steps that you can include. अगर and one more thing, like आप you can make use of like these smart watches. Now I started wearing the smart watch to track my steps. तो initially when I wore, मैंने देखा कि मेरे पूरा दिन में 2000 steps भी नहीं होते थे, लेकिन मैंने अपना टारगेट 10,000 रखा था, पर मैंने एकदम से उसको 10,000 नहीं किया। मैंने धीरे धीरे करके, मतलब आज अगर मेरा 2000 हो रहा है तो कल मैंने 2500 किया, फिर उसके नेक्स्ट डे 3000 किया, फिर मैंने धीरे धीरे करके 500 करके उसको 2-3 वीक्स में मैं 10,000 पे लेके आई। सो नाउ दैट हैज हेल्प मी अ लॉट। सो यू कैन मेक यूज ऑफ दिस डिवाइस, या फिर फोन में भी आजकल ऐप आते हैं, सो यू कैन डाउनलोड दैट काइंड ऑफ ऐप। बट फोन लेके हर वक्त घूमना इज नॉट वेरी इजी for us women especially. So I prefer this watch. You can get any kind of watch. Any questions on this? Right. No, thanks. Yeah. Okay. So there are 6 essential nutrients that we need for our body, which is like we need a combination of all of these. It's not that one of it is going to help, but हमारे खाने में ये सारी चीजें होनी चाहिए. One is protein, which I discussed, like it helps to build muscles and keeps the immunity strong, and also it keeps us satisfied throughout the day. हम लोग जब प्रोटीन खाते हैं ना तो हमारी बॉडी को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगता है उसको डाइजेस्ट करने में. सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू कीप अस मोर फुल. नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या होता है कि हमें इससे एनर्जी मिलती है, जैसे कि हमारा रोटी हुआ, राइस हुआ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं. इनसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है हमारा डे टू डे फंक्शन सब कंप्लीट करने के लिए. नेक्स्ट इज फैट. फैट जो होता है ये सबसे ज्यादा इसेंशियल न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए. इनफैक्ट अगर हम प्रोटीन और कार्ब्स नहीं भी दे रहे हैं बॉडी को तो फैट बहुत जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए. एंड जनरली क्या होता है जब लोग डाइट करते हैं तो दे स्टार्ट एक्सक्लूडिंग फैट, विच इज अगेन इट पुट्स स्ट्रेस ऑन द बॉडी. फैट में अभी आपका क्या क्या आ जाता है, आपका हो गया बटर हो गया, ऑयल हो गया, देन यू हैव एवोकाडो, कोकोनट, नट्स जितने भी होते हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स है, आमंड है, कैश्यू है, ये सारे फैट में आ जाते हैं. ये सब फैट रिच प्रोडक्ट्स हैं और इनफैक्ट हमारे दाल चावल में भी थोड़ा बहुत होता है फैट. नेक्स्ट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये तो हमें बताइए हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ये होते हैं, तो वी शुड ईट गुड अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू गेट विटामिन्स एंड मिनरल्स. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर लॉट ऑफ विटामिन्स जो कि हमारे एनवायरनमेंट से मिलते हैं, जैसे कि विटामिन डी जो कि हमें सनलाइट से मिलता है. नाउ सनलाइट इज नॉट ओनली, जो विटामिन डी है इट इज नॉट ओनली अ विटामिन, इट इज ऑल्सो अ हार्मोन. जब हमारी स्किन पे जब सनलाइट पड़ती है तो हमारी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली विटामिन डी बनाती है. नाउ देयर इज फ्यू मिथ्स व्हिच आर सराउंडेड विद दिस. एक तो लोग बोलते कि जब सुबह सुबह का जो सन होता है उसमें विटामिन डी मैक्सिमम होता है, बट रिसर्च से पता चला है कि जब हमारी बॉडी से हमारा जो शैडो छोटा होता है दैट टाइम is the maximum vitamin D that the body can make out of sunlight. तो ये जनरली होता है 9 बजे के बाद.
9 बजे से 3 बजे के बीच में जो सनलाइट से हमारे स्किन का एक्सपोजर होता है, उस समय हमें मैक्सिमम विटामिन डी मिलता है। प्लस हमारे कुछ खाने में भी विटामिन डी होता है, बट अगेन वेजिटेरियंस के फूड में बहुत कम होता है, क्योंकि ये एनिमल सोर्सेज में ज्यादा मिलता है। जैसे कि हमारे फूड में, दूध में हमें मिलता है विटामिन डी, बट अगर आप देखने जाए प्लांट बेस्ड फूड में तो उनमें बहुत ही कम होता है। सो वी हैव, हम लोग को अगर ये भी टेस्ट भी कराते रहना चाहिए बीच बीच में, क्योंकि विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बोन्स एंड जॉइंट हेल्थ, जो कि एज होते होते धीरे धीरे वो डिटोरिएट होने लगता है। सो वी शुड गेट प्रॉपर सप्लीमेंटेशन ऑल्सो फॉर दिस। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर जैसे मैंने बताया कि एटलीस्ट 3 to 5 लीटर्स तो लेना ही चाहिए। लाइक विमेन का मिनिमम होता है 2.4 लीटर्स एंड मेन के लिए 2.7 लीटर्स इज एसेंशियल एवरी डे। और अगर आप एक्टिव हैं, आपने अगर ज्यादा वर्कआउट किया है, ज्यादा आपको पसीना आता है, तो आपकी रिक्वायरमेंट और ज्यादा होनी चाहिए, आपको और ज्यादा पानी पीना चाहिए। एक्चुअली सीमा, हमारा जो इंडियन फूड है, स्पेशली अगर हम लोग वेजिटेरियन इंडियन फूड कहते हैं, तो जैसे दाल में पानी है, तो ये जो पानी कहा जाता है, ये मेरा हर टाइम क्वेश्चन रहा है कि से सपोज आई ड्रिंक 2 लीटर्स, है ना, तो हमारा खाना ही ऐसा होता है, उसमें काफी लिक्विड होता है, तो मेरा मन ही नहीं करता है कि मतलब पानी पीने का। तो दिस वाटर जो इनटेक है 2.7 लीटर, वो it includes the water in the food or yes it includes the water in the food and also आप जो टी कॉफी वगैरह पी रहे हो वो सब कुछ इंक्लूड हो जाता है उसमें। बट अगर आप उससे ज्यादा पी सको तो बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। जैसे अगर आपको सिर्फ पानी नहीं भा रहा है तो आप उसको उसमें कुछ और ऐड कर सकते हो। आप उसके मतलब चाय वगैरह भी बना सकते हो, मतलब जो ग्रीन टी होती है या और कोई मतलब कितने तरह के टीज अभी होते हैं, सो यू कैन हैव दोज। ठंडा पानी नहीं पसंद, गर्म पी लो, ऐसे सिंपल नहीं पसंद आ रहा है, नींबू डाल के पी लो, इट्स अप टू यू लाइक। मतलब लेकिन एटलीस्ट 2.5 लीटर्स तो पीना ही चाहिए। लाइक मेरे क्लाइंट्स के साथ मैंने देखा है जो 1 लीटर पी रहे होते हैं, अगर मैं उन लोग को 2.5 लीटर्स पानी पिलाऊं तो विद इन अ मंथ उनका मिनिमम 2 kgs तो कम होता ही होता है। सो लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट। जैसे मैंने ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बताया थे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमें एनर्जी देते हैं, तो ये हमारा हो गया। मैंने जैसे बताया ये दाल चावल रोटी एंड इवन अभी जो मिलेट्स ज्यादा करके लोग खा रहे हैं ना, इवन दैट इज कार्बोहाइड्रेट, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। लेकिन अभी मिलेट्स का भी मतलब ये मिथ आ रहा है कि लोग बोलते हैं कि उसको खाने से भी वेट लॉस होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर क्वांटिटी जो है ना वो बहुत मैटर करती है। आप चाहे कुछ भी खाओ, चावल खाओ, रोटी खाओ, या फिर बाजरे की रोटी खाओ या ज्वार की खाओ, क्वांटिटी इज व्हाट मैटर्स। मूव ऑन। जैसा कि मैं प्रोटीन का सोर्सेस बता रही थी वेजिटेरियंस के लिए, तो हमारे ये 5-6 सोर्सेस हैं, दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन। वन इज पनीर। पनीर में लाइक 100 ग्राम्स में प्रोटीन 18 ग्राम्स होता है, एंड बट इसमें फैट भी ज्यादा होता है विच इज गुड फैट, इट इज एसेंशियल फॉर द बॉडी। दूसरा, पनीर जैसा ही चीज भी पनीर की तरह ही होता है, बस उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि चीज में सॉल्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। सो वी शुड लिमिट द कंट्रोल ऑफ चीज, वी शुड इनफैक्ट ईट मोर ऑफ पनीर। दूसरा, मिल्क कर्ड जो है, इसमें भी 9 grams ऑफ प्रोटीन, 9 to 10 grams ऑफ प्रोटीन होता है। नाउ दिस विल डिपेंड आप कौन सा मिल्क ले रहे हो, लाइक काऊ का ले रहे हो, बफेलो का ले रहे हो, तो दैट विल अगेन चेंज, उनमें उनका प्रोटीन एंड फैट कंटेंट भी चेंज हो जाता है। लाइक बफेलो का जो मिल्क है उसमें फैट एंड कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, वो ज्यादा रिच होता है। सो यू शुड ऑलवेज रीड द लेबल। मतलब लेबल हमें ऐसे तो नहीं मिलेगा उनका, क्योंकि अगर आप लोकल मतलब अपने आसपास से कहीं शेल्टर से ले रहे हो तो यू कैन ऑलवेज सर्च ऑन गूगल टू फाइंड आउट द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफ 100 ml ऑफ दिस पर्टिकुलर आइटम एंड यू विल गेट द होल थिंग। Then we have soya chunks. Now soya chunks is excellent, like इसे कहते हैं ना कि वेजिटेरियंस का मीट होता है ये। तो अगर हम ये खाएं तो ये काफी अच्छा होता है।
ये इजीली डाइजेस्टेबल भी होता है अगर इफ इट इज प्रॉपरली कुक्ड। देन वी हैव सोया से ही बना टोफू होता है। टोफू इज अगेन वेरी रिच इन प्रोटीन विच इज 16 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हमें मिल रहा है 100 ग्राम्स में, और इसका फैट भी बहुत कम होता है अगर हम प्रोटीन ये पनीर से कंपेयर करें तो। सो बट द ओनली थिंग इज इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा ब्लैंड होता है, तो आपको इसको बहुत सीजन करना पड़ता है। बट अगेन इट इज एन एक्सीलेंट चॉइस अगर आप इसको अच्छी तरह से कुक कर पाए, जैसे पराठे वगैरह में स्टफ करके, इट टेस्ट वेरी गुड। नेक्स्ट इज हमारा चिक पीज, देन लेंटिल्स, जो भी जितने भी तरह के दाल हैं, दे ऑल आर वेरी गुड ऑफ प्रोटीन सोर्सेज, लेकिन इनमें कार्बोहाइड्रेट भी काफी ज्यादा होता है। अगर आप देखें तो कार्बोहाइड्रेट इज 16 कंपेयर टू प्रोटीन विच इज 20 ग्राम्स। सो वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल व्हेन वी आर ईटिंग दाल एंड ऑल। लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहूंगी दाल वगैरह के बारे में, जैसे ये इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स है कंपेयर टू सोया। सोया जो है इट इज अ कंप्लीट प्रोटीन सोर्स, लेकिन जब हम लोग दाल और चावल को मिलाते हैं या दाल को हम लोग वीट के साथ मिलाते हैं तो वो कंप्लीट प्रोटीन हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चिकपीस जो है उसमें मेथियोनिन बोल करके प्रोटीन का एक कंपोनेंट होता है जो नहीं एब्सेंट होता है, और वही चीज हमारी राइस या वीट के चपाती में प्रेजेंट होती है। अब जो राइस और वीट होता है उसमें ल्यूसीन नहीं होता है, जो कि ये हमारी दाल वगैरह में प्रेजेंट होता है। तो जब हम इन दोनों को मिला के खाते हैं तो हमें कंप्लीट प्रोटीन मिलता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये दोनों चीजों को मिला के खाएं। अब हम इंडियंस क्या करते हैं, जनरली रोटी के साथ सिर्फ सब्जी खा लेते हैं। सो दैट इज नॉट कंप्लीट मील। जब भी रोटी खाए उसके साथ में आप दाल या फिर दही या दूध का कोई आइटम उसके साथ में जरूर खाए टू मेक इट अ कंप्लीट बैलेंस्ड मील। एनी क्वेश्चन सो फार? मुझे तो नहीं, but I want to welcome Rajat and both if they have questions. Everything is completely understandable? Okay. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज व्हाट लाइक अगर हम, और ये जो चीजें हैं ये हम लोग डेली खाएं, एटलीस्ट 2 to 3 सोर्सेज ऑफ दिस वी शुड ईट एवरी डे। हर मील में एक चीज तो होनी ही चाहिए इसमें से। Just like a side question, like sorry, just think man. Yeah, please go ahead. Yeah, जैसे कि हम लोग है ना, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि साउथ इंडियन मील या कुछ भी इस तरह, जैसे आपने पहले बोला ब्रेकफास्ट में अगर मैंने पोहा खा लिया तो, या बट जब पोहा के साथ जैसे कि हम लोग उसमें ड्राई नट, ड्राई फ्रूट जैसे कि कुछ काजू या पीनट्स वगैरह डालते हैं, या इवन दाल का छौंक डालते हैं, तो वो मतलब वो इट्स नॉट लाइक कंप्लीट, और लाइक वी हैव टू हैव पनीर, और अभी मेरे को ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ नहीं, ये दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि अब मैंने आपको जैसे बताया था नट्स जो होते हैं ना, जो हमारे जो पीनट्स हैं या कैशू नट है, ये जो भी है ये फैट में रिच होते हैं। इनमें प्रोटीन होता है बट बहुत कम होता है कंपेयर टू द फैट। अब जब हम लोग पोहा के साथ में ये मिला रहे हैं, पोहा जो है वो राइस है, वो कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है, तो हम लोग उसमें फैट मिला रहे हैं, प्रोटीन अभी भी हमारा उसमें मिसिंग है, मतलब जो आपका जो वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। सो यू डेफिनेटली नीड टू ऐड समथिंग टू इट। नाउ देयर इज वन मोर आइटम व्हिच आई हैव नॉट डिस्कस्ड बिकॉज पीपल फाइंड इट कंटेम्पलेटिंग, इज वे प्रोटीन। ये भी दूध से ही बना होता है। जो दूध हम लोग फाड़ के पनीर बनाते हैं, जो पानी बचता है उसको सुखा के वे प्रोटीन बनता है। सो लॉट ऑफ फिटनेस पीपल इनटू फिटनेस एंड ऑल, वो लोग क्या करते हैं, अगर पोहा खा रहे हैं तो उसके साथ में वो लोग वो शेक ले लिए, और अगर आपको वो नहीं खाना है तो आप साथ में मतलब ये ले सकते हो, आप अपना पनीर खा सकते हो या दाल का कुछ भी बना के कोई आइटम खा सकते हो साथ में। और आप जैसे कह रहे हो कि दाल का छोंक लगा रहे हो, तो वो तो आप 1 चम्मच ही डालोगे ना, दैट विल नॉट बी, मतलब उतना क्वांटिटी नहीं होगा कि आप उसको बैलेंस कर सको पूरा। सो आई होप यू अंडरस्टूड, यू गॉट माई पॉइंट। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो नाउ कमिंग टू द एक्टिविटी पार्ट। अभी क्या होता है कि मैं जब लोगों को डाइट के लिए बोलती हूँ, मेरे पास बहुत लोग आते हैं डाइट के लिए, तो कहते हैं कि हम सिर्फ डाइट ही करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे। सो व्हाई एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट? एक तो ये हम लोग को
फैट लूज करने में हेल्प करता है। फैट लूज इन द सेंस ये हमें कैलोरीज जो है हमारी जो बॉडी की एनर्जी, हम जब खाते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है। इस एनर्जी को कुछ हद तक बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के फंक्शंस को जो मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए। बाकी जो होता है एक्स्ट्रा एनर्जी ये हमें इसको निकालना पड़ता है, तो दैट कैन बी डन थ्रू एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज के थ्रू ही वो एक्स्ट्रा एनर्जी निकल पाती है। दूसरा होता है टू गेन मसल्स। अभी मसल्स जो होते हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। हम जो चल पा रहे होते हैं, अभी ये हैंड मूव कर रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ आवर मसल्स। तो मसल्स हमें अपना मसल प्रिजर्व करना, इसको धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे एज होती जाती है ना, तो ये मसल जो है ना वो धीरे धीरे जो है ये डिटोरिएट होता जाता है। इसको हम लोग सैक्रोपेनिया भी बोलते हैं, लाइक जो ओल्ड एज के साथ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो बॉडी की मूवमेंट कम होती जाती है। सो फॉर दैट वी नीड टू एक्सरसाइज। तो हम लोग एक तो हम प्रोटीन खाते हैं तो भी हमारा मसल मास प्रिजर्व होता है। दूसरा, जब ये हम एक्सरसाइज स्पेशली जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं या बॉडी वेट एक्सरसाइजेस भी करते हैं, तो उससे भी हमारा मसल गेन होता है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि लोग मिस आउट करते हैं। अभी मतलब कुछ लेडीज को भी स्पेशली अगर मैं बोलूँ कि वेट लिफ्टिंग करो, देते हैं लाइक नहीं हम बल्की हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आप जब मसल गेन करते हो, विमेन में वो हार्मोन्स ही नहीं होते कि वो बल्की हो जाएंगे। तो इट विल हेल्प टोन डाउन योर बॉडी। जो लूज स्किन है वो नहीं होगी आपकी बॉडी में अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हो स्पेशली। तो नेक्स्ट इज टू बी फ्लेक्सिबल। जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारी बॉडी और फ्लेक्सिबल होती है। एज के साथ जैसे जो प्रॉब्लम्स आती है उठने बैठने की स्पेशली, सो वो उसमें भी हमें हेल्प करता है। स्पेशली जो स्क्वाट की जो मूवमेंट होती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू प्रैक्टिस ऑलमोस्ट एवरी डे। दूसरा, टू गेट स्ट्रॉन्गर। ऑब्वियसली वी ऑल नीड टू गेट स्ट्रॉन्ग। कोई नहीं चाहता कि हम कमजोर पड़े धीरे धीरे, सभी चाहते कि हमारी स्ट्रेंथ बनी रहे, एंड टू परफॉर्म बेटर एंड टू फील बेटर। सो ऑब्वियसली जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं बॉडी में जो कि जनरेट होते हैं, लाइक डोपामाइन होता है जो कि हैप्पी हॉर्मोन्स है। इससे हमारा जो माइंड है वो भी फ्रेश रहता है एंड वी फील वेरी गुड, एक एक्टिव वो फील होने लगता है। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज। जैसे हमारा गोल्स होता है, कुछ लोग का गोल होता है वेट लॉस करने का, कुछ का होता है स्ट्रेंथ गेन करने का, कुछ का होता है मसल गेन करने का, कुछ को ठीक है हमें सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ऐसा भी होता है। और कुछ को रहता है कि चलो हम कुछ भी करें तो हमें चोट वोट नहीं लगे, फिर कोई इंजरी नहीं हो। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस विच यू कैन चूज, विच इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, calisthenics, Pilates, Zumba, या yoga, whatever you can choose. At least do one exercise every day. One sort of exercise. Choose any activity. आपको योगा पसंद है, आप योगा करो। एटलीस्ट अगर आप 5 सेट्स ऑफ सूर्य नमस्कार भी डेली कर रहे हो तो भी आपकी बॉडी जो है काफी फ्लेक्सिबल रहेगी, आपका स्ट्रेंथ बना रहेगा। So it is very important that you exercise. But strength training, again, I will say, is very important for everyone. क्योंकि उससे हमारा जो मसल्स है वो प्रिजर्व रहता है। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस पार्ट? ओके, सो आई विल गो ऑन टू सम मिथ्स नाउ। मिथ जो है, पहला मिथ है ईटिंग एट नाइट विल मेक यू फैट। अभी ये बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, उससे फैट बढ़ जाएगा। 7 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए, इससे हमारा फैट बढ़ जाएगा। Now I have one thing to say कि जब ये सनसेट हो जाता है उसके बाद हमारा जो मेटाबॉलिज्म है इट डज नॉट शट डाउन। हमारी बॉडी अपना फंक्शन करती रहती है, तो हमारा डाइजेशन भी चलता रहता है। सो इट इज नॉट दैट कि आप रात को खा रहे हो इसीलिए आपका फैट बढ़ रहा है, ये आप क्वांटिटी ज्यादा खा रहे हो इसीलिए आपका फैट बढ़ता है। सेकेंड इज ईटिंग राइस, पोटेटोज, मैदा, ये सब भी लोग बोलते हैं कि इसको खाने से भी फैट बढ़ता है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि अरे चावल नहीं खाएंगे इससे हमारा फैट बढ़ रहा है, कोई बोलेगा गेहूं मत खाओ इससे मेरा फैट बढ़ रहा है, कोई बोलेगा आलू मत खाओ, मैदा मत खाओ, ब्रेड मत खाओ, हम तो सिर्फ वो ब्राउन राइस खाएंगे।
Now all these items don't make you fat. आप ये सब जब ज्यादा क्वांटिटी में खाते हो, जितना आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा खाते हो, तभी आपका फैट बढ़ता है. नेक्स्ट इज अभी लेमन हनी वाटर, शिया सीड्स का वाटर, ग्रीन टी, ये सब फैट बर्नर्स होते हैं. फैट बर्नर एक्चुअली कुछ नहीं होता है. देयर इज नो फैट बर्नर. आपकी बॉडी ही एक फैट बर्निंग मशीन है. You just need to move it and give it proper nutrition. अभी बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि पसीना आता है तो बॉडी का फैट बर्न होता है. Now, कोई जब स्पेशली जब एक्सरसाइज कर रहे हो तो लोग बोलते हैं एसी मत चलाओ रूम में, कि उस आपका पसीना आएगा तो फैट बर्न होगा. ऐसा नहीं होता है. हमारी बॉडी का अपना मैकेनिज्म होता है कि जब आप देखते हो कि जब गर्मी ज्यादा लगती है तो हमें स्वेटिंग होती है. वो बॉडी का एक थर्मोजेनेसिस बोल करके एक एक्ट होता है जिससे कि बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है. तो हम सिर्फ वाटर वेट ही लूज करते हैं थ्रू स्वेटिंग. जब हम वापस पानी पीते हैं तो वो वापस आ जाता है सारा वेट. नाउ विमेन के लिए एक होता है कि लिफ्टिंग वेट्स विल मेक यू लुक बल्की. ये मैंने डिस्कस किया पहले भी कि विमेन के लिए स्पेशली लोग बोलते हैं कि वेट लिफ्टिंग करते हैं तो बल्की हो जाते हैं. ऐसा नहीं है. If you, I mean, I have been lifting weights for last 2-3 years और मैंने एक्चुअली अपने पिक्चर शेयर नहीं किया. अगर आप देखोगे तो मैं पहले ज्यादा बल्की थी, अभी मैं टोन डाउन हो गई हूँ बिकॉज ऑफ लिफ्टिंग वेट्स. सो दैट्स ऑल. सो कीप एक्टिव, ड्रिंक वाटर, eat food properly, sleep well. That's all I can say to stay healthy and stay happy. नहीं कोई नहीं, लेकिन मतलब ये सब पता तो होता है, लेकिन आज आपने बताया तो रिवीजन हो गया. वो मुझे आज कल से मैं दोबारा से डाइट चार्ट वो प्लान बनाना शुरू करूँगा. मतलब वो न्यूट्रिशन लेता था तो सेशंस को करते थे क्या क्या मैं कंट्रोल कैसे करना है. बट अभी पिछले 1-2 साल से पूरा मैं आउट हो चुका हूँ उससे. आज वो रिवीजन हो गया. So today I'm feeling a bit inspired. कल से शुरू करूँ. That's good. So like what ideas I got out of you, yes, the protein and the water intake. ये जो दो चीज मतलब बैकग्राउंड में मेरे दिमाग में चलता रहता है. बट टुडे लाइक यू नो आई वाज एक्टिवली थिंकिंग बिकॉज यू वर टॉकिंग एंड यू मेकिंग इट सो यू नो कि हमारी लाइफ में कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करना. दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट यू फ्रॉम द फर्स्ट टाइम यू सेड हेलो टू राइट नाउ यू बीन कि हम इसको अपनी लाइफ में कैसे ले जाएं. तो दैट इज मतलब बहुत ही इनक्रेडिबल मुझे आपके इस टॉक में लगा. और जो भी इसको सुनेगा उसको भी यही लगेगा. तो आई थिंक दैट्स अ वेरी ग्रेट प्रेजेंटेशन एंड थैंक यू फ्रॉम माय साइड. आई मच मैं तो ऑडियंस था. ऑडियंस भी चाहिए भाई. ऑडियंस भी तो चाहिए. ऑडियंस चाहिए. या थैंक यू सो मच. या बाय बाय. बाय.